All right. Okay, so we discussed yesterday the relationship between ECF and LCM. We said that if I have two numbers whose ACF and LCF I have found, the product of the LCM and ACF is going to be equal to the product of the numbers itself. मैंने इसकी example भी करवा दी थी आपको, if you remember. So, if you have gone through over whatever we discussed in the last class, are there any questions? No. Okay, then we are going to start. We just briefly discussed what terminating numbers were. So terminating decimals का मतलब है these are the decimal numbers which stop after a certain number of decimal places. For example, 7/8 is a fractional value. जब इसको तुम decimal में convert करोगे, you are going to get 0.875. That's it. आगे कुछ नहीं है, ठीक है? So the value has terminated at 5. So 7/8 is 0.875. It is been terminated decimal because it stops after 3 decimal places. जबकि recurring decimals, ठीक है, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो चलता रहेगा, ठीक है, that does not end. तो 1/3 is a non-terminating number as well. Now recurring decimals, these are the decimal numbers which सर ये keep समझ repeating. नहीं आया टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, मैं तुम्हें एक वैल्यू देता हूँ 2/5. तुम अपने कैलकुलेटर में प्लग इन करो, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है. What is the decimal value coming out? 0.4. 0.4. Okay. So 0.4 ends after one decimal place. इसी तरीके से 7/8 is 0.875. So it has been terminated. मतलब कुछ decimal बाद वो number, the the digits are going to be terminated. उसके आगे नहीं होगा. But when I say, let's say pi, ठीक है, पाई पाई की वैल्यू अगर कैलकुलेटर में डालोगे, सो आपका कैलकुलेटर इज गोइंग टू शो यू 3.141592654, बट इट डज नॉट एंड ओवर हियर. इन रियलिटी इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन, ठीक है. सो दोज नंबर्स दैट डू नॉट टर्मिनेट आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यूज, और यहाँ पे these numbers are terminating. So ये थोड़े terms हैं that if you remember it's good for you. Recurring decimals क्या होते हैं? Recurring decimals which keep repeating a digit or group of digits. So इसकी classic example है 1/3. Okay, the calculator में when you are going to press 1/3, you're going to get 0.33333333. It's not ending. It's a recurring number. Okay, and it keeps on repeating. Then so you're going to write this as 0.3 और ऊपर dash बना दोगे. It is understood कि it is going to recur. Okay, usually it's a dot over on the top. तो 1/3 की वैल्यू 0.3333 वो रिपीट हो रहा है. इसी तरीके से ओवर हियर यू हैव एन एग्जांपल ऑफ 137/259. अब मैं जब 137/259 करूंगा तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू आएगी 0.528957 528 957 528 957. तो वो क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना. तो उन्हें हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स. बस इतनी सी बात है. तो ये जो 6 डिजिट्स है 528957, ये एक ऑर्डर में रिपीट कर रहे हैं. ओके, तो यू आर गोइंग टू राइट दिस एज, इसको फिर इस तरीके से नंबर, अगर कोई भी बुक्स वगैरह आप रीड करो आगे जाके, एंड यू मतलब इस तरीके से होगा नंबर, तो इट मीन्स इट इज रिकरिंग नाउ. मतलब वो यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा. दैट वाज ऑल द केस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. जी. Okay, now in question number 1, you need to sort out the numbers into the rational number and irrational number. Okay, show how you decide. Acha, 0.8652. Suleiman, do you remember what were rational numbers and what were irrational numbers?
तो मुझे कैटेगराइज करना है इन नंबर्स को कि आइदर दे आर रैशनल और इररेशनल. सो व्हाट कैन यू से अबाउट 0.8652 डेसिमल वैल्यू ये जो है, इज इट गोइंग टू बी अ रैशनल वैल्यू और एन इररेशनल वैल्यू? सर आप मुझे 1 मिनट दे, मैं सोच के बताऊं आपको. हाँ बिल्कुल. क्या मैं इस नंबर को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? जी, ये रैशनल है. ये रेशनल है. रैशनल है. ठीक है. अब सेकंड एग्जांपल है √12. स्क्वायर रूट 12 तो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं था. 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है. तो यस. √12, अच्छा इन क्वेश्चन में आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे. ठीक है. सो अगर मुझे ठीक है. मालूम करना है कि स्क्वायर रूट 12 इज अ रैशनल नंबर है या नहीं, सो आई एम गोइंग टू राइट 12 in terms of its prime factors, that is 2 into 2 into 3. So square root of 12 is basically same as saying square root of 2 into 2 into 3. Now 2 into 2 is, so I can, would you agree that this is going to be 2 √3? क्योंकि you can make 2 का pair and that is going to be written outside the square root sign. कैन यू ये रिपीट द समझ, क्वेश्चन सर? मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ समझ में आती है कि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 into 3 को मैंने 2 √3 लिख दिया. ये चीज़ जी. समझ में आती है? जी. Okay, so now the final simplified answer for square root 12 is going to be 2 √3. Is 2 √3 जी. an irrational number or a rational number? इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इनकम्प्लीट वो है, रूट है. Yes, that is an irrational number. What can you say about the term 4 pi? Pi itself is it a rational number or an irrational number? रेशनल नंबर. It's an irrational number. Pi is an irrational number. So अगर मैं pi को वाई. 4 से मल्टीप्लाई, pi हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि वो irrational number था, that cannot be represented as a fraction. जी. ठीक है. So if pi is an irrational number, 4 pi is also going to be an irrational number. 67/19 क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इट्स अ रैशनल नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ 64, अब तुम ये मुझे बताओ, डू यू थिंक स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज अ रैशनल और इररेशनल नंबर? इज 64 अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम नंबर? यस, 8 का स्क्वायर है. 8 है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 is going to be simplified as 8. So now I'm going to look at 8 whether is it a rational number or an irrational number. Rational number. Make sense? यस, बिकॉज हमने तो परफेक्ट परफेक्ट वैल्यू निकाल लिए ना रूट की, तो हाँ. इनकम्प्लीट रूट नहीं है ना. Yes, तो yes, रेशनल नंबर हो गया. yes. ठीक है. Now जी. in question number 2 I have to write 60 as a product of its prime factors. So do you remember जो हमने LCM कल की क्लास में लिया था? If I want to write 60 as a product of its prime factors, मैं क्या करूँगा? I'm going to find the 60 के prime factors. So 2 times 30, 2 times 15, 3 times 5, 5 times 1. So I can write 60 as 2 into 2 into 3 into 5, which is index notation form क्या होगी? 2 square into 3 into 5. Simple. यस. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है जैसे हमने कल की क्लास में किया था. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू टेक दिस एज अ न्यू एग्जांपल. फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 84 एंड 180. सो याद है मैंने कैसे बताया था? आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट वन टाइम मोर, और डू यू वांट टू ट्राई इट ऑन योर ओन? आई विल ट्राई इट बाय माय ओन.
Yeah, any progress? All right. So this is a past paper question. November 2015 paper one question chal. So it's a paper one question. You are not expected to use a calculator. So the idea is that in part A, you have to express 198 as a product of its prime factors. So what does that mean is that you have to go for prime factorization. So for answer A, you are going to find the prime factors of 198. Okay? So 2 times 9 is 18. 2 times 9 is 18. Okay? 2 times 99 is your 198. Now 3 times 33 is 99. Then 3 times 11, and then finally 11 times 1. So I can express 198 as the product of its prime factors as 2 into 3 square into 11. ठीक है सुलेमान यहाँ तक? अच्छा स्क्रीन, हाँ स्क्रीन पे आप विजिबल है? जी थोड़ा बहुत लेट आ रहा है असल में। हाँ लैग हो गया था। All right, so 198 can be expressed as 2 into 3 square into 11. यहाँ तक ठीक है? जी Okay, answer B. Now there is a number m. We don't know what number is m, okay? But m is 2 square into 3 into 5 square. And the number n is 2 cube into 3 square into 7. You need to come up with the largest number that divides exactly into m and n. So by reading the question, do you understand that the largest number that is going to divide exactly m and n is going to be the highest common factor? मैं जो HCF जो निकालते हैं हम, ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो वही तो लार्जेस्ट नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा. Okay, find the largest number that divides exactly into m and n. So this means that you have जी to find HCF. So if number m is 2 square into 3 into 5 square, and number n is 2 cube into 3 square into 7, what is going to be the highest common factor, the greatest common divisor, you can say? Largest number is going to be, you will have to take the हाँ HCF. यस So HCF in this case is going to be, highest common factor we have to take out the highest common factor right yes, तो 2 में से highest common चीज क्या आएगी? 2 square Yes, फिर 3 में से 3 3. 5 is not common, 7 is not common, so I'm going to leave this as right over here. So the largest number comes out to be 2 square into 3, that is 12. So 12 is the largest number that is going to divide exactly m and n. Okay. okay yes Then find the smallest value of k such that m into k is a cube number. I need to come up with the smallest value of k such that जब मैं number m को k से multiply करूंगा, I'm going to get a cubic number. तो इस पार्ट को थोड़ा आराम से समझना. I want to multiply m with k, okay? And after multiplying k with m, it is going to be a cubic number. So what is m? M was 2 square into 3 into 5 square. मुझे इसको, मैं इस नंबर को क्यूबिक नंबर कैसे बना सकता हूँ?
क्यूबिक नंबर समझते हो? क्यूबिक नंबर इज अ नंबर दैट इज लाइक द होल थिंग क्यूब, यानी कि m जो भी है ना, it needs to be a cubic number. So this is 27 is a cubic number, right? 27 is a cubic number. So 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है. So I have to multiply 3 times 3 by 3, तो वो cubic number बन रहा है. अब यहाँ पे if you want this number m to be a cubic number, you will have to multiply it by k. So ये पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए so that जब मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्यूबिक नंबर हो जाएगा. तो क्यूबिक नंबर के लिए एवरी फैक्टर नीड्स टू बी रेज बाय पावर 3. सर अभी यहाँ पे 2 स्क्वायर है सुलेमान सर, मुझे इसको फर्दर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्यूब हो जाए? 2 से. 2 से. गुड. फिर मैं 3 पर भी क्यूब चाहूंगा. इफ आई वांट इट टू बी अ क्यूबिक नंबर, तो 3 पे 2 मुझे बार फर्दर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जी. और ये वापस मल्टीप्लाई बाय 5. Exactly, good. So this is the new number that needs to be multiplied with m so that the result is going to be a cubic number. सही है? So would you agree that this is the value of k? So k is going to be 2 times 3 square times 5. Okay? So answer क्या आता है 2 times 3 square times 5 का? 9. 9 times 10 is 90. Okay? तो जब मैं इस m के नंबर को इस न्यू नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके वो क्यूबिक नंबर बनेगा. जब मल्टीप्लाई करने के बाद द नंबर इज गोइंग टू बी 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब. ओके, तो जब जाके ये क्यूबिक नंबर बनेगा. 2 इंटू 3 इंटू 5 क्यूब. सही है. 10 10 10 30 का क्यूब. सो ये वो नंबर होगा क्यूबिक नंबर. बात समझ में आई कैसे करना है? बट सर मुझे वो एंड में थोड़ा मसला हुआ है, वो अब असल में ये लैग हो रहा है ना कि सोल्यूशन नहीं सही से आ रहा. अच्छा, अभी जितना मैंने यहाँ तक सोल्यूशन तुम्हें डिस्प्ले हो रहा है, would you जी, do ये 90 you तक agree समझ with आ that? गया. सही. यस. ठीक है. सो ये क्यूबिक नंबर, ये क्यूब नंबर होगा. ठीक है. सो k की वैल्यू कम्स आउट टू बी 90. So these are one marks question that you have to do without the calculator. Okay, should I move on? यस. Okay. So this is another question. I want you to note it down. Uh, screen पर सर जाए. तो ये आपने 30 वाला भी कैसे कराया था जो आपने अभी लिखा था? 90 तक तो समझ आ गया. हाँ, so basically मैं ये कह रहा था कि जब मैं if I multiply it by k, then it's going to be a cubic number. ठीक है. जी. तो if you multiply it by the value of k, that is going to give you 2 cube, 3 into 3 cube into 5 cube. जी. ठीक है, मैं पहले वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ. सो देन जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके क्यूबिक नंबर आएगा. सो जी. मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ. ये ज़रा मेरे पास लैग हो रहा है थोड़ा. हाँ, जस्ट गिव मी. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जब मैं k से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो द नंबर इज गोइंग टू बी 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब. ठीक है. सो द नंबर देन इट इज गोइंग टू बी अ क्यूबिक नंबर. इसको मैं बस सिंप्लीफाई करके लिख रहा था. अगर मैं पावर 3 एज अ कॉमन बाइट लिख दूं, so it is going to be 2 into 3 into 5, that is 30 cube. This is a cubic number then. Okay, बस मैं ये कहना चाह रहा था. बट इसका अभी इस क्वेश्चन से एज से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है. Okay, I want you to note down this question before we move on. सही. Is the question visible? यस.
और जो पार्ट्स तुम्हें आते हैं यू मे स्टार्ट डूइंग इट. All right. So yes, for the first part, what you would have done is you're going to express 60 as a product of its prime factors. So 2 times 30, 2 times 15, 2 3 power 2 times. multiplied by 3 multiplied by 5 Yes. is the prime factor. So 60 can be represented as 2 square into 3 into 5. Good. Do part B then. Find the smallest possible integer m such that 60m is going to be a square number. इसका क्या मतलब है सर? So similar to the previous question, जहाँ पे you were multiplying the number m by k to make it a cubic number, यहाँ पे you want to multiply it by you are going to multiply the number 60 by m to make it a perfect square. Okay, you need to make it a square number. So how can you multiply 60? Say 60 is 2 square into 3 into 5. What numbers needs to be further multiplied so that the resulting answer is a squared number? तो सर हम 3 को मतलब पावर मतलब 3 पावर 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे सॉरी, और सही, 5 यहाँ को पर ही 3. मल्टीप्लाई बाय यस, 5 कर देंगे. यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 क्योंकि ऑलरेडी 3 की जब पावर 3 1 था, 3 की पावर 1 आ जाएगा, जी, तो इट इज गोइंग टू और बी 3. मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो यस, ये वेरी आगे गुड. जाके सो 2 पावर 2 इंटू 3 नहीं तो पावर 2 इंटू हाँ, लेकिन मैंने क्या नया नंबर मल्टीप्लाई किया है? व्हाट इज द न्यू नंबर दैट आई एम मल्टीप्लाइंग? 3 and 5 3 into 5, that is 15. so. Would you agree that m would have a value of 15 so that जब मैं 15 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा जो रिजल्टिंग आंसर होगा that is going to be a perfect square number. So therefore m is going to be 15. ये बात समझ में आई? नहीं सर, क्लियर नहीं हुई. Okay. Find the smallest possible integer m such that 60m is going to be a square number. तो मेरे पास 60 के तो फैक्टर्स थे. 60 क्या है? 2 जी स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. सही, ये 60 था. आपने मुझे कहा कि सर if I want to make it a perfect square, I need to multiply this further by 3, multiply further this by 5. So this is a new number that you are multiplying it with, right? यस. So that new number in the question is given to you as m, 60m, m multiplied by 60. So that's why you are going to say that m की value is 15. जब मैं कौन ओके. से 60 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? तो हमने ये 15 फिगर आउट से. किया कि 15 से. तो 60m is going to be a perfect square number, so m is going to be 15. Make sense? ओके. यस. All right. Now for this part C, the lowest number that is a multiple of both 60 and the integer n is 180. Find the smallest possible value of n. Then there are two numbers. One is 60 and the other integer number is n. Okay. इन दोनों का लोवेस्ट नंबर मल्टीपल जो आता है, दैट इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम. इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कम्स आउट टू बी 180. समझ आई बात? So we जी. need to find the smallest possible value of n. So for part C, what you are going to do is, I know 60 is 2 square into 3 into 5. ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाट n is. वही तो फाइंड करना है. बट इन दोनों का जो एलसीएम होगा that is 180. Okay, LCM is 180. So can you help ओके. me identify the prime factors of 180? 2 times 90, 2 times 45, 3 times 15, 3 times 5 and 5 times 1, right? यस. So LCM of 180 is basically equal to 2 square into 3 square into 5. हम क्या चीज देखते थे एलसीएम निकालते वक्त?
दो नंबर्स का जब भी एलसीएम निकालते थे हम, वी वर सिलेक्टिंग द कॉमन फैक्टर्स विद हाईएस्ट द, कॉमन फैक्टर। we were selecting the common factors with the greatest power, यस। okay, and the uncommon factors as well. So यस। अगर अगर मैं चाहता हूँ एलसीएम में टू स्क्वायर मौजूद हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर अगर देखो, अगर एलसीएम में मैं चाहता हूँ टू स्क्वायर हो, ठीक है, जी। और मुझे एन की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है आपने, ठीक है, तो यहाँ पे एन की जगह कुछ लिखना ज़रूरी है या नहीं? नहीं लिखना जरूरी ना, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना। ऑलरेडी गिवन है, मतलब टू स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, अगर यहाँ पे टू स्क्वायर होता तब भी टू स्क्वायर आ जाता, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा एन में, एन में लाइक इफ टू इज नॉट गोइंग टू बी अ फैक्टर ऑफ एन, तो ऑलरेडी जी। यहाँ से टू स्क्वायर आएगा ही ना। जी। सही है, तो इसका मतलब है कि आई डोंट नीड टू राइट टू ओवर हियर। अच्छा, व्हाट कैन आई से यस। अबाउट थ्री स्क्वायर? यहाँ पे एलसीएम में थ्री स्क्वायर आ रहा है और मेरे पास 60 में थ्री है, तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर होना चाहिए था सच डेट कि यहाँ पे थ्री स्क्वायर है एलसीएम में? थ्री नहीं। अगर थ्री होता तो थ्री की पावर वन आता ना यहाँ पे। द जी। वन विद द, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द नंबर विद द ग्रेटेस्ट पावर, तो ये थ्री स्क्वायर कहाँ से यस। आया होगा? थ्री स्क्वायर। सर मैं क्लियर नहीं हो रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, पता नहीं क्यों। कोई कोई मसला नहीं, मुझे बताओ क्या मसला है। पहले टू वाली मैं बात सही है कि मुझे यहाँ पे टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ टू स्क्वायर यहाँ पे दोनों ऑलरेडी सेम आ रही एलसीएम है। में शामिल आएगा, ठीक है। जी। ओके, व्हाट अबाउट थ्री स्क्वायर? थ्री स्क्वायर में मैंने कहा कि एलसीएम में मैं हाईएस्ट पावर सिलेक्ट करता था, नंबर वो जी। नंबर जिसकी हाईएस्ट पावर हो, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर होना चाहिए था ना जिस जो यहाँ पे थ्री स्क्वायर देगा। यहाँ पे तो थ्री की पावर वन है, तो अगर यहाँ जी। पे सिर्फ यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा थ्री का, तो यहाँ पे थ्री की पावर वन आना चाहिए था, या फिर अगर यहाँ पे थ्री जी। की पावर वन वाला फैक्टर होता तो थ्री की पावर वन आना चाहिए था। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे थ्री स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे थ्री स्क्वायर होगा तब जाकर थ्री स्क्वायर यहाँ पर आया ना। जी। यहाँ पे थ्री स्क्वायर होगा ना टर्म। जी। सही है, बात समझ में आई? अब आ जाओ जी। फाइव पे। हम हाईएस्ट पावर देख रहे हैं ना। हाँ, तो फाइव एलसीएम में फाइव मौजूद है। अब जी। यहाँ पे फाइव होना जरूरी है या नहीं है? फाइव की पावर वन है यहाँ पे, जी। जरूरी है या नहीं है? नहीं है ना, दोनों में सेम है। हाँ, मतलब कहने का मकसद ये है कि एलसीएम में हम अनवांटेड नंबर अनकॉमन नंबर्स भी ले लेते हैं, तो ये फाइव ऑलरेडी यहाँ से आ चुका है, तो मुझे मजीद जी। फाइव यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं। अगर फाइव लिखा हुआ होता तब भी आंसर यहाँ एलसीएम में फाइव ही आता, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वैल्यू होगी एन की वो छोटी से छोटी होगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। सो यस। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज वॉट? आई जस्ट थ्री नीड पावर टू। थ्री स्क्वायर ओवर हियर, I just need 3 square over here. यस। Okay, so the smallest value of n becomes, what is n equal to? n की क्या वैल्यू नाइन। होगी? n is equal to what? थ्री Yes, स्क्वायर 3 square, that is 9. नाइन। So that is the smallest value of n. समझ आई बात? जी। ठीक है, okay. So if you want to note down something you can, otherwise I'll move on to the next question. आई हैव नोटेड ऑल द थिंग्स। Okay, best. Now you are being asked to work this out without the calculator. Okay, so work out these using a calculator. Sorry, so say 47 का square is going to be, calculator में 47 का square दबाया, you're going to get क्या वैल्यू आ रही है यार? 47 square comes out to be 2209। 2209. Good. Square root of 729. 200।
27 आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2729, सही है। सो इट शुड कम आउट टू बी 27। अब ये ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाले हुए थे, मतलब ये मतलब एग्जैक्टली इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। वर्क आउट 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 64 माइनस 16, ठीक है। 64 माइनस 16 इज 48। अच्छा, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड टू डू दिस वर्कआउट cube root of 216 without a calculator. If you are ever asked to find the cube root or a square root without a calculator, you do this. You're going to take the number और इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लो। ओके, सो 2 से अगर डिवाइड करते हो 216 को, यू आर गोइंग टू गेट 108। फिर 108 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 54। फिर 54 को 2 से डिवाइड करोगे, यू आर गोइंग टू गेट 27। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, so 3 times 7 and 7 times 1, sorry 3 times 9 is 27, okay, and 3 times 3 and 3 times 1, बात समझ में आई? So I can write cube root of 216 as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो अब जब भी आपके पास क्यूब रूट होगा ना, आप 3 3 के पेयर्स बनाओगे। अगर आपके पास 3 3 के पेयर्स बन जाते हैं, वो नंबर बाहर आ जाएगा क्यूब रूट के, सही है। तो 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, सो आंसर इज गोइंग टू बी 6। यानी कि नाउ इफ यू वांट टू क्रॉस चेक योर आंसर विद अ कैलकुलेटर, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टाइप इन क्यूब रूट ऑफ 216, यू आर गोइंग टू गेट 6। यानी कि 6 का क्यूब इज 216, ठीक है। तो जब आप क्यूब रूट लोगे 216 का, यू आर गोइंग टू गेट 6 एज योर आंसर। बात समझ में आई? जी। Okay. Now in question number 7, बात वही है, work out using the calculator. Now Suleiman, I'm not doing this because that's easy और तुम calculator से कर सकते हो। I want you to do this question with me, directed numbers पे। Remember we had a discussion on directed numbers जिसमें the negative sign was important, okay? The negative sign tells you the direction. So Suravi measured the daytime and the nighttime temperatures in a garden for 2 days. Here are her results. तो डे एंड टाइम, मंडे को डे टाइम में टेम्परेचर हो रहा था 7 डिग्री सेंटीग्रेड और मंडे को रात को टेम्परेचर हो रहा था -2। ट्यूसडे को डे टाइम में हो रहा था 3 और ट्यूसडे को नाइट टाइम में हो रहा था -5। हाउ मच डिड द टेम्परेचर चेंज बिटवीन ईच रीडिंग? हर रीडिंग के बीच में कितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है? सो मंडे डे और हाउ मंडे मच नाइट में इज इट, 5 और ट्यूसडे डे एंड ट्यूसडे नाइट कितना टाइम में चेंज आ रहा है? -2। नहीं 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 नहीं, 5। सोच के बताओ। नहीं 5 नहीं आ रहा, ये तो चीज है। देखो, ये मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, -1 जी -2 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जी। अगर -2 टेम्परेचर था रात में और दिन में 7 टेम्परेचर था, लग रहा है ना कि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। कितना ड्रॉप हुआ है? काउंट करो। दिन में अगर 0 तक तो 7 था 7 डिग्री और ड्रॉप हुआ होगा, हाँ, और रात में फिर -2 है, -2 पे चले गया। तो कितना टेम्परेचर तो डिफरेंस? 7 था, हाँ, तो कितना 7 था टेम्परेचर ना, तो चेंज आया? 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 0, तो फिर 8 -1 -2, कितना चेंज कितना आया? 9 का चेंज 8। आया, हाँ 9, सॉरी 9, 7 को भी काउंट करना भूलिए मैं। ठीक है। तो ये कैसे जी करोगे? 7 माइनस -2 दैट इज 9। अब जी। -2 से 3 में कितना, +3 में कितना चेंज आया होगा? यानी कि मंडे की रात से ट्यूसडे के दिन में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ होगा? अगर ट्यूसडे को दिन में 3 था और ट्यूसडे के नाइट पे 5 आ गया, तो 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, इसमें भी नहीं 9। नहीं, होल्ड ऑन, नहीं ना, -2 से 3 जाना है, तो कितना अच्छा टेम्परेचर चेंज -2, हो गया? सॉरी मैं समझा सर कि ये सिर्फ ट्यूसडे का अलग बताना, मंडे का अलग बताना, सॉरी। नहीं 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 नहीं, अब मंडे -2 और नाइट 3 से का। ट्यूसडे डे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब मुझे तुम बता दो जी कि ट्यूसडे डे टाइम से ट्यूसडे नाइट टाइम में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, चेंज कितना आया है? 9। सही है। अच्छा, ये -9 है, ठीक है। यहाँ पे -9 इसलिए होगा कि वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर,
यानी कि -9 का मतलब है कि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे +5 का मतलब है कि चेंज इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप हुआ है या इंक्रीज हुआ है, और कितने से हुआ है, ये वैल्यू बताओ मुझे। ये -9 होगा ना सर? ठीक है, नहीं -9 नहीं होगा। देखो रात को टेम्परेचर था -5, और उसमें 3 माइनस कर दो तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया ना। यानी कि तुम 3 से 0 जाओगे तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आएगा, और 0 से जी -5 जाओगे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो 3 और 5 8, यानी कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी। बात समझ में आ गई? ओके। The daytime temperature on Wednesday was 4 degrees centigrade warmer than the Tuesday nighttime temperature. ठीक है, व्हाट वाज द वेंसडे डे टाइम टेम्परेचर? तो एक और दिन का ये लोग स्टडी कर रहे हैं, वेडनेसडे डे टाइम एंड वेडनेसडे नाइट टाइम। ये कह रहे हैं द डे टाइम टेम्परेचर ऑन वेंसडे वाज 4 डिग्री वार्मर देन द ट्यूसडे नाइट टाइम टेम्परेचर। तो ट्यूसडे नाइट टाइम को -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब यहाँ पे वार्मर का मतलब है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था उसका टेम्परेचर। सो -5 अगर रात में हो रहा है टेम्परेचर, और हमें पता है कि वेंसडे को दिन में जो टेम्परेचर है वो इसके मुकाबले 4 डिग्री वार्मर है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ओवर हियर? 8 डिग्री। सोच के बोलो। देखो 4 डिग्री वार्मर है, यानी कि मैं सुबह वेंसडे की सुबह उठ के बोल रहा हूँ कि यार रात को -5 टेम्परेचर था, अभी जो है ना जी टेम्परेचर 4 डिग्री वार्मर हो गया है, यानी कि गर्म गर्म हो गया, यानी कि -5 से टेम्परेचर बढ़ गया होगा। अब -5 से 4 डिग्री ऊपर जाओ, -4, -3, -2, -1। बात जी। समझ में आई? तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी? तो सर माइनस, इसको हम पिछले बार की तरह क्यों नहीं करेंगे जिससे ये तीनों सॉल्व किए थे नहीं इस हमने? मतलब इसी ट्यूसडे नाइट से कंपेयर कर रहे हैं। अगर स्टेटमेंट पढ़ो, द डे टाइम टेम्परेचर ऑन वेंसडे वाज 4 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन द ट्यूसडे नाइट टाइम टेम्परेचर। सो जी वेंसडे को जो दिन में टेम्परेचर हो रहा है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है ट्यूसडे नाइट टाइम टेम्परेचर से। तो इसका हाँ मतलब है कि -1 हुआ ना, वो 4 डिग्री जी सेंटीग्रेड ऊपर होगा। बात समझ में आई? जी ओके, सही है। चलो, तो जी। आज की क्लास तक मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। कल की क्लास में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स। सही है। ओके। बट एक काम करो ना, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ट्राई कर लेना, इफ यू कैन डू इट देन वेल एंड गुड, वरना मैं करवा दूंगा। देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, दिस इज वेरी बेसिक एक्सरसाइज, तो इसको जी जितना जितने क्वेश्चंस कर सकते हो वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 तक जी कर लो जब भी टाइम मिले, ठीक है? जी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास यार। ओके, अल्लाह हाफिज।